this is the fundamental of networking, CCNA and Fortinet batch. For the guidance part, you can connect with the counselor. We will help you in that. For the cyber security, also we have CEH certified ethical hacker. We have SOC analyst, that kind of programs. So, Amit sir, we can start with the day one session for the networking and the firewall. Okay, over to That's you, good. sir. Please start the session. Thank you. Yeah, thank you, Sachin. So let me go and start, guys. Hey, guys, again, welcome to the class and very good evening to everyone. So, as this is stated by Sachin, like this is day one of that combo class that we are going to start, that is CCNA plus Fortinet. So, this is day one. Day zero already have been discussed. This is day one. So, what we are going to learn, I'll be starting from very scratch point, means from zero, and we'll be heading towards, we'll learn all the stuff there is in the CCNA plus Fortinet combo syllabus. So what's the first thing? Let me share my screen first. Are you guys are able to see this screen? Yes, sir. Okay, sure. So as we are learning here, CCNA plus one firewall, and what is that firewall name? Fortinet. So in CCNA, we'll be learning fundamentals of networking, okay, as well as routing, very decent level, like basic would be clear. Routing, switching, in switching, you will be learning how switches works and what are the mechanism switches use in its backend to really make forwarding in rapid mode. Before going ahead, I just want to understand, like, how many of you understand Hindi also? Yes. Raghav, Santosh, Shivam, Dinesh. Yes, sir. You understand Yes, sir. Hindi? Anyone who does, he don't know Hindi, or like if I'll start speaking in Hindi, then he or she will not get anything. Anyone here? Hey, Sayyed, you are here. Okay, Sayyed, welcome back. Rahul. Yes, 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 sir. Okay. So can we go in Hindi only if you guys find it for comfortable, or anyone who don't know Hindi, then this is actually again I have to maintain the pace or the language accordingly. Yeah. You guys are following? Anyone, please come up and please say you need only English. Or everyone is comfortable with Hindi, then I'll be switching the language. ओके, तो मैं हिंदी में बात करूं गाइस. यू आर विद मी? जी सर. ओके, थैंक यू. एक बात, अगर किसी को नहीं समझ में आएगी हिंदी, प्लीज स्टॉप मी और रेज योर हैंड. जस्ट इंटरप्ट मी एंड आस्क कि भाई मुझे ना हिंदी नहीं समझ आ रही है, मुझे इंग्लिश में बोलो. ओके. यस. तो बिकॉज हम सीसीएनए और फोर्टीनेट को एज अ कॉम्बो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल पढ़ेंगे नेटवर्किंग का, कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग की जरूरत ही क्यों है, और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, क्या क्या ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हमें बीइंग अ सक्सेसफुल नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर हमें पता होना चाहिए. ओके, गुड. ये चीज अगर हमें पता है तो बहुत ही आसान होगी हमारी जर्नी इस करियर में. अगर आप नेटवर्किंग में पहले से हो, दैट इज वंडरफुल. अगर आप नए हो, आप स्विच कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल. सो वेरी बेसिक पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो हम क्या करेंगे, पहले नेटवर्किंग का बेसिक समझेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है और जरूरत ही क्यों है. उसके बाद हम मूव करेंगे स्विचिंग पे. अब यहाँ पे मैंने स्विचिंग लिख दिया.
बड़े जने होंगे यहाँ पे जिनके मन में आ रहा होगा ये क्या लिख दिया, स्विचिंग क्या होती है, वो आप समझोगे थ्रू आउट द क्लास जब आप आते रहोगे क्लासेस में। राउटिंग क्या होता है, राउटिंग यहाँ लिख दिया। ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे समझो बात को, मान लो आपकी कंपनी है, या नॉर्मली सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, हम सबके पास, हम सब जो इंसान है, इंसान क्या करता है अपने जीवन में हमेशा बैकअप बना के चलता है चीजों का, कि अगर ये वाला काम नहीं काम करेगा, प्लान ए इज नॉट वर्किंग देन प्लान बी वी हैव। सो हम ऐसा बैकअप बना के चलते हैं कि भाई अगर मेरे पास पैसा यहाँ से नहीं आया तो वहां से आ जाएगा। अगर हम अपने लाइफ में बैकअप बना के चलते हैं, सपोज करो आपने कोई बिजनेस ओपन किया, और आपके बिजनेस में जाहिर सी बात है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट तो लागू होगा ही, अगर आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है तो। अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ रहा है उस समय अगर आप नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई करते हो, तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि मेरे पास नेटवर्किंग का भी बैकअप हो। लाइक अगर आप कोई एक ऐसी डिवाइस लेके आते हो जिसका काम है नेटवर्किंग के सारे पहलुओं को अप्लाई करना, तो आप क्या ध्यान रखोगे कि मेरे पास बैकअप भी हो। तो जो बैकअप के लिए चीजें आती हैं जिसे हम बोलते हैं आज के समय पे हाई अवेलेबिलिटी और रेडंडेंसी, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे अपने इसी सीसीएनए वाले क्लास में। करेक्ट। सो हम सीखेंगे राउटिंग, स्विचिंग, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स और इनके सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स। लाइक बैकअप कैसे बना के रख सकते हो, हाई अवेलेबिलिटी कैसे रखो। करेक्ट। सो जब एज अ नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे तीन काम होते हैं। क्या हमारा काम होता है? तीन। एक होता है सी, एक होता है आई, एक होता है ए। व्हाट डज दैट मीन? सी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। आई का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी। ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। सर फॉन्ट बड़ा कीजिए सर। या कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, लिख दूं फिर करता हूँ। अवेल, ये तीन एक ऐसे जैसे होता है ना कि एक पर्सन बोलता है कि मेरे जीवन का सिद्धांत है भाई ये चीज, तो ये समझ लो एक नेटवर्क इंजीनियर के जीवन का सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है एक नेटवर्क इंजीनियर के जीवन का सिद्धांत? कि वो जिस भी नेटवर्किंग कंपनी में काम करता है, जिस भी डिपार्टमेंट में है, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट जिस भी कंपनी में है, वहां पे इस तीन चीज का फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही हमारी एक्चुअल में बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर और बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर स्पेशलिस्ट, वट एवर रोल यू आर इन द नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, ये हमारा एक्चुअल में यही तीन चीजों पे हमें काम करना पड़ता है। अब इन तीन चीजों को पहले समझ लो, आपका काम हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है गाइस? एनीवन हैव आइडिया व्हाट डज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन? एनी आइडिया? कोई बोलना चाहेगा? नहीं, मैं बोल देता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स इट मीन यू टू शेयर योर डिटेल्स। हम्म। करीम, नहीं नहीं, थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं। लाइक अकाउंट और यूजर नेम और पासवर्ड्स, आई डोंट थिंक सो। दैट इज गुड। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कुछ ऐसे भी आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, कभी कंपनी में कुछ लोग अगर काम करते होंगे उनको वो रिलेट करेंगे। होता है, बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ना कॉन्फिडेंशियल है भाई। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? like private कॉन्फिडेंशियल, or something. दैट कैन नॉट बी नोन बाई एवरीवन, राइट? तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो इंटेंडेड पर्सन है उसी को सिर्फ जानकारी होनी चाहिए उसकी। सेम उसी तरह से मान लो आप कंपनी के अंदर में हो, आपके कंपनी के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई एचआर में है, कोई सेल्स में है, कोई अकाउंट्स में है। अब एचआर का जो एक एग्जीक्यूटिव है, एसोसिएट लेवल का पर्सन है, उसके जो लैपटॉप पे जो आप एक्सेस दोगे कि भाई आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हो, वो अलग होगा, और मैनेजर के सिस्टम पे अलग एक्सेस दोगे आप। बात समझ में आ रही है? ये जैसे मान लो सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एक ऐसा आ गया जिसमें लिखा है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। आपको क्या लगता है कि अगर वो आपके नाम से नहीं आया है तो आपको ओपन करना चाहिए वो?
अगर ये मान लो आपको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कॉन्फिडेंशियल, प्लीज डू नॉट ओपन, क्या करेंगे आप वो लेटर को ओपन करके पढ़ेंगे, या जिस पर्सन के लिए होगा वो उसको पढ़े ओपन करके? क्या लगता है हमें? जिस पर्सन के जिस लिए पर्सन के इंटेंडेड लिए होगा उसको वो दे पर्सन देंगे। ही पढ़े, करेक्ट? जी। ये वही वाली बात है। ये बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, जिस पर्सन को जो चीज ऑथराइज है ना, उसको उसको ही वो चीज देना एक्सेस। मतलब अगर किसी एक मैनेजर के ही सिस्टम पे अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस देना है तो आप उसी के सिस्टम पे सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस दोगे, और मैनेजर ही सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, ना कि कोई भी एक एग्जीक्यूटिव आया, एसोसिएट आया, वो एक्सेस कर रहा है इंटरनेट। सो कहां पे आता है ये चीज? कॉन्फिडेंशियलिटी। लाइक एनीथिंग दैट इज इंटेंडेड टू समवन ओनली, दैट पर्सन कैन एक्सेस द सर्विसेज और डेटा और फाइल, वट एवर जो भी आप बोलना चाहो, या इंफॉर्मेशन। इज दैट गुड गाइज? या सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे अभी मुझे भेजा है चैट पे, करीम भाई ने भेजा है, करण, जैसे कि अकाउंट और यूजर नेम या पासवर्ड मांगा जाता है, राइट? डोंट शेयर लाइक दैट विद एनीवन। सही बात है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, डेफिनेटली यस। वी डू नॉट नीड टू एक्चुअली शेयर आवर क्रेडेंशियल्स टू एनीवन। सही बात है। बट कॉन्फिडेंशियलिटी जब मैं बोलता हूं तो ये सीआईए ट्राइड के अंतर्गत बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, दिस इज कमिंग अंडर CIA pride. And what is that? ये तीन, मतलब आप समझो कि CIA त्रिकोण बोल सकते हो हिंदी में, ट्राइड की हिंदी होगी अगर हिंदी में बात हो रही है। ये तीन चीजें अगर आपने अपने कंपनी के अंदर मेंटेन कर दी, मतलब यू आर गुड, मतलब आपकी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है, जो चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म में है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, यानी कि किसी भी चीज की जो ओरिजिनलिटी है दैट रिमेन सेम। चाहे आप घर पे बैठ करके काम कर रहे हो, रिमोट लोकेशन पे हो, वर्क फ्रॉम होम में हो, और आप कोई एक फाइल भेजते हो अपने किसी दूसरे कोलिग को यूजिंग इंटरनेट और सम अदर मीडियम, तो जब आपके लोकेशन से वो फाइल जाए, तो और जिसको भेजा है उसके तक पहुंचे, थ्रू आउट द जर्नी उस फाइल के अंदर में कुछ भी चेंज ना हुआ हो, ओरिजिनल जो आपने भेजा था वही उसे मिले। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। और कैसे ये चीज अटेन होगी, कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो किसी कंपनी में? जब आपके कंपनी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो। लाइक आपके जो कंपनी के नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, या फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, या जो पेन टेस्टर है, उसको ये पता है भाई कि क्या क्या कमियां थी मेरे कंपनी के अंदर, उसको सही कर रखा हो उन्होंने। अदरवाइज आप जब कोई फाइल भेज रहे होगे कंपनी से इंटरनेट के थ्रू, कोई पर्सन बीच में आएगा, आपकी फाइल को चेंज करेगा और आगे भेज देगा। तो यानी इंटेग्रिटी वहां पे क्या हो गई? आपकी ब्रीच हो गई। इज दैट गुड गाइस? फॉलोइंग विद मी? समझ में आ रहा सबको? हम्म। जी सर। Yes, sir. Yes. और अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है जी? अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब जिस सर्विस की या डेटा की जरूरत हो वो चीज अवेलेबल हो, इसी को बोलते हैं बैकअप। क्या बोलते हैं इसको? बैकअप। और इंटेग्रिटी के लिए हमारे पास क्या है? बहुत सारी चीजें हैं इंटेग्रिटी के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम किसी चीज में पासवर्ड लगा दें, है ना? समझ में आ रही बात? इंटेग्रिटी के लिए हमारे पास पासवर्ड लगा दिया, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे उन्होंने बोला यूजर नेम और पासवर्ड डालो तब एंट्री पाओगे किसी चीज में। जैसे मान लो आपकी कंपनी में आया एक मैनेजर को आपने एक्सेस दे रखा, भाई अगर आप अपने अकाउंट से लॉग इन करोगे किसी सिस्टम में, तो आपके अकाउंट के बेसिस पे मैंने आपको एक्सेस पहले से टैग कर रखे हैं, असाइन कर रखे हैं। उसी सिस्टम में अगर कोई दूसरा यूजर आके लॉग इन करेगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, उसको अलग एक्सेस मिलेगा। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। इंटेग्रिटी के अंदर में हैशिंग आ जाता है। हैशिंग का मतलब क्या होता है गाइस? एनीवन हैव आइडिया व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग का एक्चुअल में यूज कुछ अलग तरीके से किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ क्या बोल रहा हूँ। आई डोंट थिंक दैट स्क्रीन यू गाइस विल बी एबल टू सी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नेक्स्ट टाइम, वन सेकेंड। गाइस दिख रहा है आप लोगों को ये स्क्रीन?
सबको google.com वाली स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, कैलकुलेट हैश वैल्यू। फाइल है सब है। जी, नो नो नो। जैसे मैंने एक फाइल अपलोड किया, इसकी एक हैश वैल्यू आ रही, देखो ध्यान से देखो सब लोग। MD5 SHA-1 डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम है, हैशिंग एल्गोरिदम। MD5 ने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगर मैं दूसरी एक यहीं पे एक और ब्राउजर खोल लूं, मतलब एक टैब और खोलूं, और इसके साथ में सेम वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट थी ये वाली ना, लेट मी, ये स्क्रीन भी दिख रही है सबको? हेलो? यस यस Yes, सर। yes. ओके गुड। अब देखो हुआ क्या, एक सेंडर था जिसने एक फाइल भेजी, ये फाइल का नाम था, ठीक है, जो कि 28,000, ये जो भी बाइट है, ये बाइट्स में है, 285,086 बाइट्स की है। इसका आपने क्या किया, एक हैशिंग एल्गोरिदम रन किया और इसका एक हैश वैल्यू निकाल लिया, इसको बोलते हैं हैश वैल्यू। अब हुआ क्या, जब आपने उस फाइल को भेजा तो इंटरनेट के थ्रू गया, इंटरनेट पे कोई पर्सन था, कोई हैकर था, उसने क्या कर लिया, आपके उस पर्टिकुलर फाइल का एक्सेस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो उतना सिक्योर नहीं था, या किसी भी वजह से वो मैन इन द मिडल हो गया है, आपकी कंपनी का कोई यूजर पीसी है जो इन्फेक्टेड है वायरस से। तो यानी कि जो कुछ भी आपका वो यूजर भेजता है, उसकी सारी फाइल कोई हैकर पढ़ रहा है, सारी चीजें। मैन इन द मिडल में बैठा हुआ है, कोई पर्सन है, हैकर है, वो बीच में है बैठा हुआ, जो कि उसके थ्रू सारी चीजें होके गुजर रही हैं। उसने आपकी फाइल को उठाया, आपकी जो मेन डेटा था उस डेटा में कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या किया उसने, उसको भेज दिया जहां पे डेस्टिनेशन पे भेजा था आपने। यानी कि बंदे ने किसी, जैसे मैं अगर हूं यूजर, मेरा नाम मान लो ए है, और मैं यूजर बी को, ए बी को कोई फाइल भेज रहा है, ठीक है, तो जब वो फाइल भेजता है, जब फाइल सेंड होती है इंटरनेट के थ्रू, तो वो फाइल का एक हैश वैल्यू भी कैलकुलेट होता है। हैश वैल्यू क्यों कैलकुलेट होता है? हैश वैल्यू इसलिए कैलकुलेट होता है, जब ए बी को कोई फाइल भेजेगा और बी उस फाइल को रिसीव करेगा, तो ये चीज चेक करे कि भाई कहीं ये फाइल में किसी ने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया है। उसके लिए क्या रिसीव होती है, उसमें क्या हम भेजते हैं लगा करके, हैश वैल्यू लगा के भेजते हैं। अब हुआ क्या, यूजर ए ने एक इमेज भेजा, और एक हैकर बीच में इमेज को कैप्चर किया और उसको भी अंदर कुछ चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद आगे सेंड कर दिया। वो सिर्फ इसी में चेंज करेगा ना दोस्त, डेटा में। हैशिंग वैल्यू तो उसके बस की है नहीं चेंज कर पाना। क्यों नहीं है बस का चेंज कर पाना? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्या होती हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसको लगभग इम्पॉसिबल ही है हैक कर पाना, कि कोई भी एल्गोरिदम किस तरह से काम कर रही है। MD5 इज ओके, MD5 पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। जैसे SHA-1 हो गया, SHA-256 हो गया, या SHA-512 हो गया, इसके चीजों को क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल सा है। तो यानी कि वो इसको कुछ नहीं करेगा, आपके फाइल को चेंज कर दिया, करेक्ट, ये फाइल चेंज हो गई, अब यूजर बी को फाइल मिल भी गई। यूजर बी क्या करेगा, पहला काम उसका ये होगा कि जो फाइल मिली है उसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करे। क्या करे? हैश वैल्यू। जब अब वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो जो वैल्यू आएगी, जो पहले आपकी वैल्यू उसके साथ में गई थी एग्जैक्ट ओरिजिनल फाइल के साथ में, क्या दोनों वैल्यू मैच करेंगी आपस में? टेल मी, यस गाइज, यस नो? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हैश क्या करता है, आपके फाइल का एक वैल्यू, एक तरह का आप एक कोड दे देता है आपको। जब आप जैसे सपोज करो, मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक फाइल लिया, मान लो ये डेटा भेजना है मुझे, ये फाइल मैंने अपलोड किया, इसका कैलकुलेटेड जो मेरा वैल्यू आया ये आया। अब मान लो यूजर बी को फाइल मिल गई, यूजर बी ने क्या किया कि यूजर बी ने भी सेम को ही क्या कर लिया, कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इतनी, और इसकी वैल्यू भी उतनी आई है। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम टू सेम आ रही है, इसका मतलब फाइल में किसी ने कोई चीज चेंज नहीं किया है, यानी कि ऑल्टरेशन नहीं हुआ है, मतलब फाइल ओरिजिनल फॉर्म में ही है। तो हैशिंग एल्गोरिदम एक्चुअल में क्या होता है, हैशिंग एल्गोरिदम समझ लो कुछ इस हिसाब से है। आप लोगों ने अगर पुरानी किसी ने मूवी देखी हो, याद आएगा उसे, पहले के समय पे जब लोग स्मगलिंग करते थे ना, उन मूवीज में जो दिखाते थे,
तो बोलते थे कि अच्छा, तो कैसे पता करेगा कि राइट पार्टी के पास ही तू गया है ये चीज देने के लिए। उसके लिए वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ कोड में बात करते थे वो। ये किसी को ध्यान आ रहा है? कुछ वो कोड बोलता था, जैसे आगे के 4 डिजिट बोल दिए, एक्सपेक्ट करता था कि उस बंदे को पीछे के 3 डिजिट पता होंगे। तो क्या वैलिडेट करता था वो, कि सही पार्टी से ही मिल रहा है या नहीं, इंटेग्रिटी वैलिडेट करता था वहां पे। रिलेट कर पा रहे हो गाइस? यस सर, लाइक फटा हुआ नोट रहता है, आधा उसके पास आधा इसके पास। या करेक्ट, फटा हुआ नोट का एक टुकड़ा उसके पास है कि उसके पास है, वो उसको देगा, समझ जाएगा अच्छा मेरे पास भी, ओके मतलब सही पार्टी आया मेरे पास। तो इंटेग्रिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ये ऐसे समझो, बहुत अच्छा है वो। गुड एग्जाम्पल, थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब वही कि बैकअप आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो कोई एक यूजर आया, थैंक यू जैद। कोई यूजर आया, यूजर क्या कर रहा है कि यूजर को भाई कोई सर्विस एक्टिव, अभी कोई सर्विस का एक्सेस लेना है इसी समय, लेकिन कंपनी में है भाई, वो सर्विस कर रहे हैं, सर एक्चुअली ना वो सिस्टम डाउन है सर, तो आप उसका एक्सेस नहीं ले सकते हो। तो एक नेटवर्क इंजीनियर का काम ये है कि अगर जो भी सर्विसेज आपकी कंपनी की हैं, मान लो आपकी कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो क्या करोगे आप? आपकी वेबसाइट हमेशा आप रहनी चाहिए। आपके कंपनी के अंदर में ही आपका जो कंपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो चल रही है, उसका वेब सर्वर आपकी कंपनी के अंदर रखा हुआ है। अब आप नेटवर्क इंजीनियर, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? को वेब सर्वर अप रहे हमेशा। एग्री? लेकिन हुआ क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंसी या लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, पावर बैकअप नहीं था, और नेटवर्क इंजीनियर जो भी वहां पे तैनात था उसने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, ऑफिस में नाइट शिफ्ट में लगा था, सो गया। जब जब लोग यूजर आ रहे हैं उधर कुछ खरीदने के लिए, वेबसाइट का सर्वर ही डाउन है, करे अरे तो वेबसाइट चल ही नहीं रही है। क्या लगता है आपको, इस तरह की सर्विस होनी चाहिए या ये हमेशा अप रहनी चाहिए? जब किसी को जरूरत हो वो सर्विस को यूज करने की, तो अप रहनी चाहिए, टेक्निकली अप रहनी चाहिए। और किसकी जिम्मेदारी है? एक नेटवर्क और सिक्योरिटी इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर की जिम्मेदारी है। ये तीनों चीजें जो मैं हम लोगों ने अभी अभी समझा। पहला सी, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो जिस पर्सन के लिए चीजें इंटेंडेड है, जो एक्सेस जिसको मिला है वही उसको एक्सेस कर पाए, ये दूसरा। अगर कोई पर्सन किसी को कुछ सेंड कर रहा है या किसी के पास कोई चीज जा रहा है, तो इसके ओरिजिनल फॉर्म में ही जाए, कोई बंदा चेंज ना कर पाए उसकी चीज, उस पर्टिकुलर डेटा या इंफॉर्मेशन के अंदर घुस के, यानी सिक्योरिटी टाइट चाहिए। तीसरा, अवेलेबिलिटी, जब कोई सर्विस या कोई डेटा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी यूजर को कंपनी के अंदर, तो वो चीज अवेलेबल रहे। और इन सब चीजों के लिए हम क्या क्या चीजें अपनाते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, पूरी स्क्रीन शेयर कर दी अब की बार। उसके लिए हम कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं। इंटीग्रिटी के लिए हमारे पास हैशिंग था। अवेलेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या हो जाता है? बैकअप। बैकअप होता है कि नहीं होता? अवेलेबिलिटी के लिए हमारे पास बैकअप है, कि बैकअप वाली चीजें सारी होंगी। यू गाइस आर फॉलोइंग इट? समझ में आया? यस सर। तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर की जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें फॉलो हो रही है। अगर ये सारी चीजें सही से चल रही हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर, तीन के तीनों जो त्रिकोण है, अगर ये सारे के सारे सही सेट है, इसका मतलब आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है, आपका नेटवर्क बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ही एफिशिएंट है। यानी नेटवर्क इंजीनियर्स को 100 में से 100 नंबर। गुड। ये एक्चुअल में हमें ध्यान रखना होता है। तो अब कह रहा है लीव द मीट एंड ज्वाइन लेटर। यस राम गोपाल, नो इशू, यू कैन। Yeah, actually, he understand English only, sir. Yeah. या सॉरी? He understand English only, sir. No problem. We can shift him in English back. Don't worry. Okay, okay, no problem, sir. No, 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 not because of language. I have got some other tasks, that's why. Thank you. Okay, so you will be coming in the class if the task is done, or what is that? Okay. Okay, feel free to join. Once if class is running, you are most welcome. Okay. Okay, Ram Okay, Gopal. okay. We'll Thank see you. you. We'll see you tomorrow or later. Don't worry. Thank you. Okay. So CIA tried. I hope सबको समझ में आया होगा दोस्त, है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? ये जो चीजें अपन सीखने वाले हैं ना, CCNA और फोर्टिनेट फायरवॉल का यूज करके, हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हम इस चीज को किस तरह से सॉल्व करें, या इस चीज को कितने कितने ऑप्टिमाइज तरीके से अपने कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमें नॉलेज होगा तब करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं जिससे कि हम इस चीज को फुलफिल कर पाए। यानी कि देखो, समझो बात को, कोई भी कंपनी बहुत अच्छी बनेगी जब वहां के एम्प्लॉयज अच्छे होंगे।
बात समझ में आ रही है? तो अगर आप हम एज ए एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, मीन्स वो कंपनी अपने आप ही अच्छी बन गई जी। ठीक है, तो हम सारी चीजें समझने वाले हैं। पहला बेसिक्स, देन लिटिल बिट एडवांस थिंग्स लाइक व्हाट, हाउ प्रोटोकॉल वर्क्स, ये देखेंगे। उसके बाद सिक्योर कैसे करना है चीजों को, फिर अवेलेबिलिटी कैसे लानी है, मतलब बैकअप, सो एनी यूजर इज कमिंग एंड एवरी सर्विसेज शुड बी अप। ये सारी चीजें हम देखेंगे थ्रू आउट दिस क्लास। तो इसमें हम दो तरह की चीजें देखेंगे, एक तो नेटवर्क सर्विसेज और अप, लाइक उनका बैकअप है। दूसरा नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज का बैकअप है। तो जो नेटवर्क सर्विसेज होंगी उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास राउटर्स होंगे एंड स्विचेज होंगी कंपनी के अंदर। और इसके लिए हमारे पास मान लो कोई फायरवॉल है, फायरवॉल्स है, ये सारी चीजों की फायरवॉल्स हैं, प्रॉक्सी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन हम अपने इस क्लास में इन चीजों पे मेजरली फोकस करने वाले हैं, जो इस पे हम लोग अभी हैं। तो स्टार्ट करें बिना देर करें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से गाइस। देन व्हाट इज नेटवर्किंग? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग एवरीवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब कभी अपने लैपटॉप को फॉर्मेट किया हो? कोई आप में से है जिसने अपने लैपटॉप का विंडो खुद से अपग्रेड किया हो या उसमें फॉर्मेट किया हो? एनी ऑफ यू? यस कोई सर। यहाँ, कोई सज्जन है यहाँ पे जिन्होंने ऐसा किया हो? किसने किया है? यस सर। दिनेश किया है, करेक्ट। यस। लास्ट टाइम कब किया था? लास्ट टाइम बिफोर 3 months। चलो गुड। कैसे किया था अभी जब किया था फॉर्मेट, कैसे किया था? फॉर्मेट विंडोज 10 का वो डाल के पेन ड्राइव डाल के एसओ पेन फाइल। ड्राइव डाल के, ओके। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कोई यहाँ पे है जिसने 5 साल पहले फॉर्मेट किया हो अपना लैपटॉप या पीसी, मतलब उसमें विंडोज अपलोड किया हो या रीमेज इमेजिंग की हो अपने लैपटॉप में या पीसी में? कोई है इधर? अगर नहीं है कोई बात नहीं है, मैं हूं ना मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज मुझे याद है जब मैं फॉर्मेट करता था, आज के 15-18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरे पास ना बहुत सारी सीडी थी जिसके अंदर मैंने विंडोज को बर्न करके रखा हुआ। उसको बोलते हैं विंडो के अंदर उसको बर्न करना। आप बात समझ रहे हो? पहले आईएसओ इमेज लेता था, फिर उसको डाउनलोड करता था वेबसाइट से या कहीं से, किसी ऐसी वेबसाइट से है कोई करके किसी तरह से, क्योंकि पहले से ही खोपड़ी वही वाली थी। तो उसको फिर इमेज को बर्न करके एक डीवीडी में रखता था, या कोई लेके आया ओरिजिनल विंडोज का कॉपी पायरेसी बना लिया। उसको रखने के बाद क्या करते थे हम लोग, डीवीडी ड्राइवर होता था पहले के समय पे। लैपटॉप जो पहले के आते थे, किसी के पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो नहीं आते वो वाले लैपटॉप मार्केट में नए, अगर नया लोगे कि डीवीडी सीडी ड्राइवर तो हट ही गया है। पहले के समय पे ना एक जगह होती थी आपके लैपटॉप में जहां सीडी या डीवीडी भी लग जाती थी। किसी के पास, किसी ने देखा ऐसा लैपटॉप? एनीवन? यस सर। यस सर। हो सकता है कुछ लोगों के पास हो भी, अगर पुराना लैपटॉप होगा किसी के पास तो। मतलब 7 8 10 साल पुराना लैपटॉप किसके पास होगा, होगा उसमें। तो बात को समझो कि उस समय सीडी डीवीडी में हम किसी चीज को सेव करके रखते थे, करेक्ट। अभी और थोड़ा पीछे जाओ, और थोड़ा पीछे जाओगे ना, अब अगर किसी को पता हो, एक पहले आती थी फ्लॉपी डिस्क। एनीवन हैव आइडिया? एमबी में होती थी साइज उसकी इवन जीबी नहीं, एमबी में होती थी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब उस मुद्दे पे आते हैं। आज के समय पे हम लोग पेन ड्राइव से फॉर्मेट कर लेते हैं लैपटॉप वगैरह। चलो अब इसको छोड़ दो, एक दूसरा एग्जांपल। आप में से कितने लोगों ने कभी मूवी देखी हो, सीडी डीवीडी प्लेयर में लगा के देखी हो, सीडी या डीवीडी ला करके? देखा है किसी ने? मतलब जी अभी सर, जी मान सर। मूवी देखा, बहुत जनों ने देखा होगा। आज के समय पे सेम चीज हम फॉलो करते हैं अभी। अगर कोई मूवी देखनी है, क्या हम सीडी डीवीडी प्लेयर लेके आते हैं, उसमें फिर डीवीडी लगाते हैं मूवी की, मार्केट जाए खरीद के लाएंगे, यार वाली मूवी देना, देखना इसमें स्क्रैच ना आ जाए, नहीं तो फिर जब चलेगी तो इसकी सीन फंस जाएगी बीच में करेक्ट। ये सब चीजें हो रही है अभी। नहीं, अभी क्या करते हैं हम, अभी डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे, जो सर्च करना सर्च कर लेंगे, या देर आर सो मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उस पे जाएंगे और मूवी जहां अगर उस पे है तो उस पे देख लेंगे डायरेक्ट। चीजें कितनी चेंज हो गई हैं अभी ना।
लेकिन अब एक बात बताओ, ये चीजें इतना चेंज हुई किस वजह से है? क्या ऐसा चीज हो गया जो ये चीजें चेंज हो गई? एनी आइडिया? इंटरनेट। करेक्ट, इंटरनेट की वजह से। बहुत बढ़िया, गुड जवाब, गुड जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ही तो है। इंटरनेट अपने बैकएंड में क्या फॉलो करता है? नेटवर्किंग। करेक्ट गाइस, फॉलोइंग ना? सो नेटवर्किंग में क्या होता है? वंस डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड, व्हाट? इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड पर्पज इज शेयरिंग रिसोर्सेज और सर्विसेज और इंफॉर्मेशन और डेटा, इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। तो ये जो चीजें अपन अभी सीडी डीवीडी प्लेयर में डीवीडी नहीं लगा के देखते, आज के टाइम में मूवी डायरेक्ट हमें चीजें एक्सेस हो जाती हैं, वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि सब डिवाइसेज आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। कि जब दो बहुत सारी डिवाइसेज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, राइट, वो तभी संभव है जब नेटवर्किंग होगा। और नेटवर्किंग में अगर कोई डिवाइस है, मींस, मेरे कहने का क्या मतलब है ये समझो। सपोज करो आपकी एक कंपनी है, अब मैं इधर दिखा देता हूँ आपको करके, समझना ध्यान से। गाइस दिख रहा है सबको स्क्रीन? एक मिनट रुकना। ओह सॉरी, this button is required here. इंटरनेट बोलने चलेगा क्या? मुझे नहीं लगता है लेना चाहिए, मैं हटा देता हूँ इसको। ओके, अब क्या करते हैं हम? 1 सेकेंड। बहुत अच्छे से समझना गाइस इसको, है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके कुछ यूजर्स बैठे हैं, यहाँ भी यूजर है, यहाँ भी यूजर है, यहाँ भी यूजर है, यहाँ सिर्फ एक यूजर है, और यहाँ पे आपके पास प्रिंटर लगा हो। ठीक है, जो लास्ट क्लास में ज्वाइन हुए होंगे, एक साथ कुछ एग्जांपल दिया था उधर भी मैंने, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ओके, अब पॉइंट क्या है? ये आपके कंपनी का है सेल्स वाला डिपार्टमेंट, ठीक है? ये है आपका सेल्स टीम, और इधर आपकी जो है ये है एचआर टीम। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ये एक नॉर्मल डिजाइन बना दिया कंपनी का मैंने, बहुत छोटा सा समझाने के लिए सिर्फ। तो ये मान लो आपकी पूरी कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी, लेट सपोज। कंप्लीट कंपनी, कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट के बारे में जिक्र किया गया है इस वाले इमेज में। कंपनी का नाम है कंपनी एबीसी, ठीक है? अब हुआ क्या कि एक जो सेल्स टीम के अंदर में एक यूजर PC 0, ये इस वाले पीसी में जो भी यूजर बैठा था, उसको क्या पता लगा, भाई मैं सेल्स में हूं, ये कोई लोन कर रहा था किसी कस्टमर का, इसको जरूरत पड़ी यार मुझे ना कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है। तो गाइस बताओ कैसे निकालेगा प्रिंट आउट? क्या इसके इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस पर्टिकुलर सेल्स टीम के अंदर कहीं प्रिंटर है? जस्ट टेल मी गाइस, कहीं भी यहाँ प्रिंटर दिख रहा है आपको? सबसे पूछ रहा हूँ मैं।
नो नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके पास क्या मेथड है? इसने क्या किया? अब एक चीज और कर देता हूँ इसमें, फिर मजा आएगा और और वो क्या है चीज अभी दिखाता हूँ आप। अब ठीक है, ये लो जी। देखते रहना, इसको ध्यान से देखना है, अच्छा लगेगा आपको देख के। गुड। सी, ये वाले बंदे के पास प्रिंटर है नहीं, इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो ये क्या करेगा? इसके पास क्या क्या मेथड है भाई? या तो ये सिंपली एक काम करे कि किसी पेन ड्राइव वगैरह में जिसका प्रिंट आउट निकालना है उसको डाले और उसको सेव करके कहाँ जाए चल के, एचआर टीम के पास। और एचआर टीम में देखो है ना यूजर, इस वाले यूजर से प्रिंटर कनेक्टेड है, इस बंदे के पास जाएगा PC3 के पास, बोलेगा एचआर वाले सर प्लीज हेल्प करो ना मेरा, आप मेरा ये प्रिंट आउट निकाल दो। अब ये इधर जाएगा और इस पर्सन को देगा अपना ओपन ड्राइव, बोलेगा सर ये वाला इसमें कुछ है, एक प्रिंट आउट निकालना है, डॉक्यूमेंट है, टेक दैट। ये PC3 वाला यूजर क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को अपने में सेव करेगा, प्रिंट कमांड देगा, फिर प्रिंटर उसको प्रिंट आउट निकालेगा, फिर ये जो यूजर था ये चल करके पैदल पैदल आएगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है, बड़ी अच्छी डिजाइन है ये हमारे कंपनी के लिए? ये अच्छी बात है मेरे कंपनी में अगर ऐसा कुछ होना हो रहा है तो। यानी एवरी टाइम योर सेल्स पर्सन इज कमिंग टू यू इफ ही नीड्स टू एक्सेस एनी सर्विस और रिसोर्स, फॉर एग्जांपल प्रिंटर एक रिसोर्स हो गया। आपको क्या लगता है ये अच्छा अच्छा चीज फॉलो हो रहा है आपके कंपनी के अंदर, या इसको और बेहतरीन किया जा सकता है? बताइए। डेफिनेटली बेहतरीन किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा चीज थोड़े ना है। अभी PC0 को कोई प्रिंट आउट लेना है तो ये बेचारा क्या कर रहा है, ये भाई यहाँ से उसको पेन ड्राइव में या किसी तरह से भरता है, फिर स्टेप इन होता है HR टीम के पास, HR डिपार्टमेंट में, मान लो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में है, उसको चल के भी जाना पड़ रहा है थोड़ी दूर। कंपनी एक ही है, HR टीम किसी और बिल्डिंग में बैठती है, सेल्स वाली टीम कहीं और बिल्डिंग में बैठती है, एक ही जगह पे है, बड़ी थोड़ा चल के जाना पड़ रहा है। ये सही चीज तो है नहीं। अच्छा फिर क्या किया जाए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब आपने क्या किया, इस यूजर के PC को अगर ध्यान से देखो, PC0 इज गोइंग ऑल द वे थ्रू द राउटर, देन दिस राउटर, दिस स्विच, देन आफ्टर दैट दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद प्रिंटर। इस केस में चीजें आसान दिख रही हैं गाइस आप लोगों को? हेलो हेलो। जी जी सर, आसान दिख रही तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही नेटवर्किंग बोलते हैं दोस्त। यानी कि जब आपके डिवाइसेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, रीजन क्या है, पर्पज है, सो दैट कि आप रिसोर्सेज को शेयर कर पाओ उनके साथ में। या लेट सपोज यहाँ पे कोई सर्वर है आपके पास। सर। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सेल्स टीम के बाद ही पास ही एक ऐसा प्रिंटर ऐड हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। आपने क्या बोला कि भाई ये नेटवर्किंग ना करो, समझना बात को। एक मिनट रुको पहले। हाँ, हटा दो इसको। आपने बोला क्या कि आप सेल्स टीम में थे, आप अपने मैनेजर के पास गए, बोले सर एक ना प्रिंटर की बड़ी जरूरत होती है, मुझे ना HR टीम में जाना पड़ता है, एक प्रिंटर खरीद दो आप, या एक प्रिंटर लगवा दो। आपको क्या लगता है सेल्स वाला बंदा क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई जाओ चुपचाप लेके आओ वहां से, प्रिंटर उंटर नहीं मिलने वाला। प्रिंटर लग तो सकता है, सही बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो कंपनी की। हम जब एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं किसी कंपनी, हमारा काम क्या है, कंपनी के पैसे को बचाना, रेवेन्यू जनरेट करना, या हमारा काम होता है कॉस्टिंग बढ़ा देना? डेफिनेटली हमारा काम है बचाना। हम इसीलिए सो दैट हम कमा के देंगे कंपनी, कंपनी हमें देगी। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, यहां अगर हमने प्रिंटर लगा दिया, दैट इज गुड, ये भी नेटवर्किंग के पार्ट में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन मैं इन जनरल बात बता रहा था आपको। आपने इसको कनेक्ट कर दिया सेम ही नेटवर्क में, यानी स्विच से कनेक्टेड है PCB, ये PCB, ये PCB, यानी PC0 अगर प्रिंट आउट लेना है ये भी ले सकता है, PC1 भी ले सकता है, PC2 भी ले सकता है। यहाँ मान लो प्रिंटर नहीं है, PC3 यहाँ पे कहीं और बिल्डिंग में है, अगर इसको प्रिंट आउट चाहिए तो इसको चल के आना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो नेटवर्किंग हम कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, हम नेटवर्किंग दोस्त इसलिए कर रहे थे सो दैट कि हमारा समय बचे, हमारा एफर्ट बचे, और अगर एक ही डिवाइस है उसी रिसोर्स को सारे लोग यूज कर पाए। दो प्रिंटर की जरूरत क्यों है भाई? एक ही कंपनी के अंदर में अगर एक प्रिंटर से काम चल सकता है, एक यहां से केबल यहां से यहां तक अगर बिछा दिया जाए उसका भी यूज करके, तो देन हम क्यों खरीदने जाएंगे भाई कि चलो ठीक है 30,000 का प्रिंटर खरीद रहे हैं हम? नहीं।
तो नेटवर्किंग एक्चुअल में क्या करती है, ये सारी सुविधाएं हमें दे देती है। नेटवर्किंग इतनी अच्छी चीज है। नेटवर्किंग का मतलब क्या किया आपने, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप यहाँ गए, केबल उठाया, लगा दिया, अब ये सब के सब कनेक्टेड हैं। यू डोंट नीड टू बाय अ सेपरेट प्रिंटर, क्योंकि कोई बंदा दिन रात प्रिंट आउट थोड़े ना दे रहा है। क्यों गाइस, क्या बोलते हो आप, रिलेट कर पा रहे हो बात को? जी जी सर। तो एक्चुअल में नेटवर्किंग को इसी को तो बोलते हैं नेटवर्किंग। इतना बड़ा चीज थोड़ा नेटवर्किंग मीन्स क्या, बहुत सारी डिवाइसेज आपस में इंटरकनेक्टेड है हो, और उनका पर्पस क्या है इंटरकनेक्ट होने का, सो दैट सर्विसेज, एक जगह पे कोई सर्विस है उसको दूसरा यूजर भी एक्सेस करना चाहता है। कोई प्रिंटर, चलो रिसोर्स ले लो, प्रिंटर को रिसोर्स बोल सकते हो। कोई रिसोर्स है कहीं पे, उसको सारे यूजर एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू आउट द कंपनी। अगर सबके सब नेटवर्क का पार्ट है, एक ही नेटवर्क का, तो सब नेट के नेटवर्क के नहीं भी है पार्ट, तब भी नेटवर्क के पार्ट है। मीन्स एनी वन फ्रॉम एनी लोकेशन इन द कंपनी कैन गिव प्रिंट कमांड एंड कैन टेक प्रिंट आउट, दैट्स इट। तो उसको यूज करने के लिए सबको जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। किसी एक डिवाइस में किसी एक पेन ड्राइव में चीजें कॉपी करो, चल के जाओ, और जो बंदा डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके सिस्टम पे पहले उसे डाउनलोड करो, देन वहां से प्रिंट आउट का कमांड दो, फिर प्रिंट आउट लेकर के फिर आओ। ये सारी चीजें पहले के समय पे हुआ करती थी दोस्त। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीडी खरीद के लाए, फिर उसको आपने सीडी ड्राइवर में लगाया, सीडी प्लेयर में लगाया, फिर वो चल रही है, फिर आप मूवी देख रहे हो बैठ के। आज के समय पे क्या हो गया, नेटवर्किंग की वजह से जो मूवी आपको देखनी है, नो नीड टू बाय एनी सीडी प्लेयर सेपरेटली। जाओ आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स है, दुनिया भर की चीजें, यूट्यूब पे जाओ, रील देखो, ये सब चीजें करो। क्या इसके लिए कोई डीवीडी खरीद के लाते हैं हम लोग अब? नहीं ना। चीजें कितने आसानी से अवेलेबल हैं, क्यों है अवेलेबल, हो दुनिया किसी भी कोने में चीजें रखी हुई हैं, हम यहीं से बैठ करके एक्सेस कर लेते हैं इंटरनेट के का यूज करके। तो इंटरनेट भी तो नेटवर्क ही है। इंटरनेट को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी नेटवर्क्स के नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं। वो भी नेटवर्किंग है कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको नेटवर्किंग तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बोलो। जी गाइस बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ अवेयर लाइक व्हाट नेटवर्किंग इज? तो अगर आपको टेक्निकल चाहिए आंसर तो ये है। देखो आप बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग तरह से देख सकते हो, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नेटवर्किंग का ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। गाइस कोई है जिसको समझ में आया ही ना हो नेटवर्किंग क्या है, कोई आप में से? सबको आ गया समझ में, आगे बढ़े। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो दुनिया भर की यहाँ पे मैं चीजें लगाई थी, लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे एक मैंने स्विच यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक राउटर यूज किया हुआ है। ये होता क्या है, ये क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, किसी को आइडिया है गैस? ये मैंने पीसी यूज किया, पीसी तो सब लोग जानते होंगे, पीसी लैपटॉप तो सब जानते हैं। लेकिन जब स्विच और राउटर की बात आती है, तो जो पर्सन नेटवर्किंग में नहीं था, पहली बार आ रहा है इधर क्लास में, क्योंकि बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा नया हो जाएगा स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। चलो सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग कितने लोग घर से क्लास ले रहे हो और वायरलेस का यूज कर रहे हो, लाइक मोबाइल डेटा यूज नहीं कर रहे हो? कोई है आप में से यहाँ पे जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है घर पे? एनी ऑफ यू, कोई भी? जी सर, दोनों से हैं। सही है, आप वाईफाई से कनेक्टेड हो राइट। तो वाईफाई से जी कैसे जी कनेक्टेड हो, क्या क्या चीजें हो रही होंगी वहां पे, थोड़ा सा बताओगे सबको? सर, वाईफाई तो डेटा वाईफाई का राउटर ऑन कर दिया है, जी और केबल ऑन है वाईफाई का। गुड। आपके घर पे आपने इंटरनेट कनेक्शन करवाया है, एक राउटर टाइप का लगा हुआ है, जो जिससे करवाया होगा वो लगा के गया होगा, या आपका खुद का जी हो जी सकता है वो। और क्या हो रहा है कि उसमें वो जैसे ही ऑन होगा वो क्या करेगा, वाईफाई का एक एक्सेस पॉइंट आपको दिखेगा, आपने उस एसएसआईडी को जा करके कनेक्ट कर लिया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ अपने लैपटॉप में, दिख रहा है? जैसे मेरे फोन का वाईफाई बन रहा है, ये दो वाईफाई और हैं, या भैया और जाके स्कैन करूंगा, देखो इतने सारे वाईफाई दिख रहे हैं। करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सिंपल सा एग्जांपल लिया, तो इस सिंपल से अगर हम एग्जांपल लें, माइट भी यहाँ पे होगा हमारे पास ऐसा कोई हो, तो आई कैन शो यू इफ दैट इज हियर।
कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे, इसकी अलग जबरदस्ती चल रही है। अगर है इधर तो अच्छा है, मैं दिखाऊंगा आपको, नहीं तो कोई बात नहीं। ये रहा, मेरा की दिखा रहा है तो ये रहा होम राउटर। ठीक, कुछ ऐसा ही राउटर होता है हमारे घर पे भी लगा हुआ। ये क्या करेगा, आप इससे क्या कर सकते हो, इसमें पोर्ट कितने हैं, बहुत सारे वायरलेस, देखो वायरलेस पोर्ट्स हैं बहुत सारे, यानी कि इतने सारे पोर्ट वायरलेस हैं, आप दिखा रहा है। आप इसको क्या कर सकते हो, इस पे आप ले आए, कोई स्विच एक कनेक्ट कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट पीसी को भी कनेक्ट कर सकते हो इससे। आपने क्या किया कि कई सारी पीसी ले लिया और इसको कनेक्ट कर दो। तो आप लोग अगर अपने घर पे किसी के पास वाईफाई लगा होगा और वहां पे राउटर लगाया होगा आईएसपी ने ला करके, या जो भी आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसने आपको दो तरह की चीजें दी होगी। एक, उसमें वायर भी लगा करके अपने लैपटॉप में लेके आ सकते हो पीसी में। ठीक है, वायर कनेक्टर हो अपने लैपटॉप पे पीसी से, तो आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, करेक्ट। एक और दूसरा क्या मेथड होगा कि आप वाईफाई भी बना सकते हो, क्या वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया। आई होप रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। तो इस तरह का भी डिजाइन आपके घर पे ही देख सकते हो आप। किस चीज का एग्जाम्पल है ये, नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है, करेक्ट। और इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वायरलेस राउटर, फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी एक ऐसा राउटर है, एक्चुअल में ये राउटर में, इस राउटर में दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। ये राउटर है जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, लोकल सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दे रखा है। इसका काम इंटरनेट की कनेक्टिविटी देना आपको, और यहाँ पे नेटिंग करना, इतना ही सिर्फ इसका काम है। और फर्दर ये राउटर कहाँ कैसे कनेक्टेड है, फर्दर ये राउटर किसी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ये राउटर आगे जा करके किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। आईएसपी से सर। हाँ डेफिनेटली, आईएसपी से कनेक्टेड है, वही मैं फुल फॉर्म बोल रहा था। यू आर राइट। अच्छा कह रहा है ऑटो कनेक्शन इज नॉट इनेबल्ड देयर, राउटर राउटर है, लेट्स सी दे कैन बी कनेक्टेड लाइक। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपके घर पे आकर के आपका जो लोकल आईएसपी प्रोवाइडर था, उसने ये राउटर इंस्टॉल किया है, ये राउटर आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। सो आपके इस वाले पीसी को इंटरनेट पे ले जाने के लिए क्या करता है, आपका ये पीसी जो है, इस पे सेट होगा डिफॉल्ट गेटवे आपका ये राउटर, और यहाँ पे फिर नेटिंग हो रही होगी। नेटिंग सब लोग जानते हो, नेटिंग क्या होता है, नेटवर्क। यस सर। गुड गुड, थैंक यू। ट्रांसलेशन हो रहा होगा। मैं जब बोलता हूँ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब क्या है उसका, उसका मतलब सिंपल सा है। आप जब अपने घर के अंदर में होते हो या कंपनी के अंदर में भी होते हो, तो आपके जो डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर जो आईपी प्राइवेट होती है, आईपी टू। वंस वी आर एट होम और विद इन द कंपनी, देन वी हैव प्राइवेट आईपी ऑन आवर डिवाइसेस, करेक्ट। ये पहली लाइन हो गई। अच्छा, दूसरी लाइन में क्या है, एक मिनट रुकना गाइस। प्राइवेट आईपी कैन नॉट गो ऑन इंटरनेट, ये दूसरी लाइन है। अच्छा, अब मान लो मैं एक पीसी हूँ, ये वाले के एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। मैं एक पीसी हूँ, इस पे प्राइवेट आईपी है, अब मुझे इंटरनेट पे कुछ एक्सेस करना है। ये बोल रहा है कि पहले बात इसने बोली आपके घर की, मैं घर के अंदर हूँ मान लो, घर का ही तो डिजाइन बनाया था हमने अपने घर के अंदर का। अपने होम पे बैठा हूँ, एक यहाँ पे वायरलेस राउटर लगा हुआ है, वायरलेस राउटर मेरा आगे कनेक्टेड है। अच्छा, ये वाली बात हमें नहीं पता होती एक्चुअल में। हम तो सिर्फ एक कनेक्शन लेते हैं और आता है कनेक्शन वाला, एक राउटर लगा के चला जाता है, और उस राउटर से हम वायर कनेक्ट कर लिया या वाईफाई कनेक्ट कर लिया, हमें इतना पता है भाई मुझे इंटरनेट मिल गया। लेकिन पीछे की स्टोरी, क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर से, हम हमें तो पीछे की स्टोरी पता रहेगी ना, तभी तो सही है हमारे लिए।
क्यों? क्योंकि हम पीछे काम करेंगे, बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं। नेटवर्क कहाँ काम कर रहा होता है? पीछे। आज के समय पे एआई का युग है, एआई चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी सर्विसेज बहुत अच्छे से सब यूज कर पा रहे हैं, बहुत फास्ट इंटरनेट चलता है। ये सब चीजें संभव कैसे हैं? नेटवर्किंग की वजह से संभव है दोस्त। नेटवर्किंग नहीं तो कुछ नहीं, मतलब हम नेटवर्क इंजीनियर्स नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सारी जो कनेक्टिविटी हुई है इतनी फास्ट, यूपीआई से पेमेंट कर दिया, बैंक से पैसे ट्रांसफर कर लिए, एटीएम में जाके पैसे निकाल लिए, सारी चीजें क्यों संभव है? कैसे संभव है सब चीजें? ये सब चीजें संभव है बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। और वो पीछे हो रखी है, और उस लैंग्वेज को हम लोग जानते हैं, नेटवर्किंग की भाषा हम लोग समझते हैं, हम नेटवर्क इंजीनियर्स। इस वजह से सारी चीजें अप हैं और चल रही हैं बहुत अच्छे से। रिलेट कर पा रहे हैं सब? तो मान लो ये यूजर PC4 बैठा है, इसको इंटरनेट पे जाना था। अब हमने क्या बोला कि अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो आपके पास जो आईपी होगी उसे प्राइवेट आईपी बोलते हैं। क्या आईपी बोलते हैं? प्राइवेट आईपी। और फिर अगली लाइन में मैंने बोल दिया कि प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे जा ही नहीं सकती। तो यानी कि ये भाई तब तो इंटरनेट कभी चला ही नहीं पाएगा, इसका मतलब। टेक्निकली बोले तो अगर प्राइवेट आईपी ही लेके जाना चाहेगा तो नहीं चला पाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे? ये जो आपके घर पे वो भैया आए थे, राउटर लगा के गए हैं, इंटरनेट को जो सर्विस लिया जिनसे आपने, वो क्या करेंगे, ये राउटर को इस तरह से वहां पे डिप्लॉय करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, सो दैट ये क्या करे, आपकी प्राइवेट आईपी को जब लेकर के आप इंटरनेट पे जाओ तो यहीं पे उसको ट्रांसलेट कर दे। किस में ट्रांसलेट कर दे? एक दूसरी तरह की भी आईपी होती है, जिसे बोलते हैं पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दे। अगर आपकी आईपी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होगी तो क्या होगा गाइज? पब्लिक आईपी तो पब्लिक के यूज के लिए, मतलब पब्लिकली, यानी इंटरनेट पे जाने के लिए यूज में आता है वो। तो यानी कि आपकी पीसी, मान लो आपके पीसी पे एक आईपी थी, यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको। मान लो आपके पीसी पे एक आईपी थी 10111, ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है? आगे बताऊंगा क्लासेस में आपको कि ये आईपी कैसे होती है, क्लास कैसे हुआ, 1011 क्यों है प्राइवेट आईपी। उस सब पे आएंगे अपन आगे आने वाले समय पे। हुआ क्या कि ये यूजर जब इंटरनेट पे जाना चाहेगा तो अपनी आईपी लेके जाएगा, अपनी आईपी मतलब अपनी आइडेंटिटी लेकर के। मान लो ये google.com पे जाना चाहता है तो क्या होगा, ये google.com की आईपी ले लेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेगा। एनएस लुकअप चलता है क्या इसमें? यस। www.google.com। क्या है google.com की आईपी दोस्त? ये यस। कॉपी कर लिया। अब एक यूजर है, अब ये कहाँ जा रहा है? google.com पे। ठीक है? अरे यार, ये अलग ही कलर का हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है, दैट इज गुड। यानी इस यूजर की जो आईपी है वो है, इसको सोर्स आईपी बोलते हैं। और ये जाना कहाँ चाह रहा है, जिसको डेस्टिनेशन आईपी लिख रखा है, डेस्टिनेशन मतलब जहां जाना चाह रहा है, ये आईपी पे जाना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एक्सेस लेकर के कहाँ पहुंच जाएगा, ये हिसाब किताब। ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ? अपने राउटर के पास। मतलब भेजेगा तो डायरेक्ट यहीं पे 142 पे, लेकिन राउटर बीच में इसके पास पहुंचेगा। बहुत ही लेमैन की तरह समझना है इस बात को। डोंट गो विद द टेक्निकलिटी। अगर किसी को चीज पता भी है तो अभी समझो सिर्फ। जैसे ही राउटर के पास गया तो राउटर, क्योंकि ये आईपी क्या हुआ है, मैंने बोला ये प्राइवेट आईपी है। क्या है ये? प्राइवेट आईपी। और प्राइवेट आईपी कहाँ नहीं जा सकती? इंटरनेट पे नहीं जा सकती। और इन भाई साहब को जाना कहाँ है? गूगल कहाँ पे है? इंटरनेट पे है कहीं? ओके, यानी कि ये आईपी लेके अगर इंटरनेट पे जा ही नहीं सकते आप, तो कैसे जाओगे अब? तो ये क्या करेगा, आपका ये जो वायरलेस राउटर है ये क्या करेगा, आपकी आईपी को उठाएगा, और जो आपकी ये 101111 वाली आईपी थी ना, इसको ये चेंज कर देगा। इसको मान लो दे दिया इसने 11111, ये पब्लिक आईपी है। क्या है ये? और डेस्टिनेशन आईपी को इसने नहीं चेंज किया, वो रहने दिया जो भी था। क्या था ये? अब ये वाला आईपी जाएगा कहाँ? जहां इसको जाना था। कहाँ जाना था इसको? यहाँ। बात समझ में आई? तो ये जो पर्टिकुलर बीच में ये वाला आपका लगा हुआ है वायरलेस राउटर, या आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने या लोकल वेंडर ने आपको दिया है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर ने,
यहाँ पे एक सर्विस चल रही होती है जिसको हम बोलते हैं नेट, जिसे बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इस सर्विस का काम क्या होता है, आपकी प्राइवेट आईपी को लेकर के पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देना। और जब यही पर्टिकुलर जो आपने वेबसाइट को विजिट किया, जब उस वेबसाइट पे कुछ रिक्वेस्ट करो, जब वो वापस आ रही हो आपके पास, जाहिर सी बात है आपने गूगल को बोला हेलो, तो ये हेलो लेके जा रहा है गूगल के पास। अब गूगल भी तो आपको बदले में हेलो बोलेगा, जब वो हेलो बोलेगा तो मामला पलट जाएगा। यहीं पे कैसे हो जाएगा ये इस तरह से नहीं दिखेगा, फिर ये दिखेगा इस तरह से। सोर्स आईपी हो जाएगी गूगल की, समझ रहे हो सब? एक सेकेंड। फिर जब गूगल बोलेगा तो उस पर उल्टा दिखेगा फिर ये। और डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगी आप वाली आईपी, जो आईपी आपको किसने दिया था, आपके राउटर ने, 11.1.1। सबको समझ में आ रही बात? अब ये ऐसे वापस आएगा, कौन आएगा वापस, ये भाई साहब आएंगे वापस वहां से। ये आ गए, सबको दिख रहा है? अब जैसे ही इस राउटर पे फिर पहुंचे, क्योंकि गया तो इधर से ही था, इसके थ्रू ही फिर वापस आएगा। जैसे ही यहाँ वापस आएगा फिर ये देखेगा, अच्छा ओके डेस्टिनेशन आईपी आई है आपकी बार 11.1.1। इसने ट्रांसलेशन किया था ना, क्योंकि नेट का नाम की एक सर्विस रन हो रही थी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रन हो रहा था इस राउटर पे। तो जब ये कभी भी कोई ट्रांसलेशन करता है ना, तो उसकी एक एंट्री बनाता है, उसको बोलते हैं नेट एंट्री। ठीक है? तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है, नेट टेबल होती है उस राउटर के पास में। इसने उसमें एंट्री कर रखी थी कि भाई मेरे पास ना एक 10.1.1.1 वाला बंदा आया था जिसको मैंने 11.1.1.1 की आईपी दी थी। तो उस टेबल में जाके चेक करेगा, और चेक करेगा जैसे ही इसको पता लगेगा, फिर ये क्या करेगा, इसी आईपी को 11.1.1.1 को चेंज करके अब उसको क्या कर देगा, क्या कर देगा दोस्त, उसको ये चेंज करेगा और उस आईपी को ये कर देगा 10.1.1.1। और ये पर्टिकुलर चीज कहाँ पहुंच जाएगी, आपके PC4 के पास। और इस तरह से आपका ये PC4 इंटरनेट पे किसी सर्विस को google.com के साथ में हाय हेलो कर पाया। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी बताई यहाँ पे? हेलो हेलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, ये ट्रांसलेशन वाला? ये तो बहुत ही ओवरव्यू था, लेकिन अपन जब पढ़ते रहेंगे आगे ना, तो ये नेट वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे रियल में कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, यानी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये थियरी पार्ट बता रहा हूँ सिर्फ आपको, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे हम ये सब चीजें। यू गाइज आर विद मी? हेलो हेलो, समझ में आ रही सबको बात? यस सर। बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ ठीक है सैयद, बोलिए। गलती से चला गया वो। हाँ जी। गलती से हो गया वो। अच्छा अच्छा, कोई बात। किसी कोई प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले? नहीं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, एड्रेसेस के बारे में ही देख लेते हैं, बहुत जरूरी है ये। अभी हमने एक एड्रेस की बात करी, क्या बोला था, आईपी एड्रेस, यही बात कर रहे थे ना? ये आईपी एड्रेस क्या होता है गाइज? अरे यार, आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी डिवाइस की। यू कैन से नोड भी बोल सकते हो आप, नोड इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड, जो कि इंटरनेट पे है या नेटवर्क में है। यानी आपके नेटवर्क में या इंटरनेट में जो भी डिवाइस होती है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी, मतलब जैसे हमारा आपका सबका अपना नाम है ना, फिर हमें कौन, हमें हम कैसे यूनिक बनते हैं, जैसे मेरा नाम मान लो कुछ है, मेरे फादर साहब का क्या नाम है, करेक्ट। अगर कुछ मुझे मान लो आप अभी अमेजोन पे जाओ और कोई चीज आपको ऑर्डर करना है, तो अमेजोन वाला जो डिलीवरी बॉय होता है वो कैसे आपके घर तक ही लेके आ जाता है पैकेज, क्योंकि उसको एक यूनिक एड्रेस मिलता है ना, नहीं तो किसी और के घर पे ले जाके पटक देगा वो आपका ऑर्डर। यूनिकनेस क्या होती है उसमें,
आपका नेम होता है ना, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, और आपका एड्रेस होता है। फॉलो करते हो? मान लो एक पर्सन का नाम है अमन, कॉन्टेक्ट नंबर है उसका 8800000000, मतलब 10 बार ये हो गया। एड्रेस है उसका मान लो हाउस नंबर 123, और बोल सकते हो फर्स्ट फ्लोर। देखना ध्यान से इसको जो मैं बताने चाह रहा हूँ। साउथ एक्स साउथ दिल्ली न्यू दिल्ली, और पिन कोड है फॉर एग्जांपल 110016। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ रहा है? इंडिया। अब दुनिया किसी भी लोकेशन से आप इन भाई साहब को कोई चीज भेजोगे पहुंच जाएगा इनके पास। समझ में आ रही बात? कैसे पहुंचेगा? पहले तो कंट्री दिख गई इंडिया, तो कोई भी कोरियर आएगा तो कहाँ पहले आएगा? इंडिया में आएगा। इंडिया में जैसे ही आएगा फिर वो कहाँ जाएगा? इसको ऐसे रखो, या जैसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। या अगर इसको और सिंपल तरीके से करूं, अगर गांव का एड्रेस होगा तो दिल्ली से लिखा होता है विलेज। हालांकि शहर में नहीं होता है। जैसे विलेज ABC, फिर उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब और भी चीजें होती है बीच में, पोस्ट वगैरह भी होता है। डिस्ट्रिक्ट मान लो आपने लिख दिया लाजपत नगर, फिर उसके बाद स्टेट होगा, स्टेट आपने डाल दिया न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद कंट्री आएगी, कंट्री डाल दिया आपने इंडिया, पिन कोड लास्ट में आपने डाल दिया 110001, और आपका नाम ये है, अमन है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर ये है। तो ये सब चीजें यूनिक कैसे बनेगी? हो सकता है कि इस नाम का विलेज, ABC नाम का विलेज 1 लाख विलेज हो ऐसे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जो होगी, हो सकता है कि कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम लाजपत नगर से ही हो। अच्छा, स्टेट हो सकता है कि न्यू दिल्ली के अंदर ही 2 लाजपत नगर हो सकता है, लेकिन चांसेस बड़े कम है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चांसेस कम होते जाएंगे। एक स्टेट के अंदर एक नाम का हो सकता है 2 से ज्यादा जिला हो ही ना। बात समझ में आ रही है? एक कंट्री इंडिया के अंदर स्टेट तो न्यू दिल्ली नाम का एक ही है। करेक्ट। जब सब कुछ डन हो जाता है तो एक चीज आता है जिसे हम बोलते हैं हाउस नंबर। और यही नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर भी आता है, यही नहीं, पोस्ट भी आता है। तो ये पिन कोड जो है एक्चुअल में बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करवाता है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? आपके एड्रेस को कंप्लीट बना रही हैं, और आपको क्या कर रही हैं? एक यूनिकनेस दे रही हैं। अदरवाइज क्या होगा? बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, क्या होगा कि आपके पास बड़े सारे सेम नाम के गांव हैं, सेम नाम के आपके जिले हैं, इसके चक्कर में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कुछ न कुछ चीजें ऐसी उसमें ऐड होती हैं जिससे कि आपको कंप्लीट एड्रेस यूनिक बन जाए और आप तक ही पहुंचे। जैसे मैं बात करूं, कई बार किसी सोसाइटी में आप जाओगे तो सोसाइटी में हर गली में सेम हाउस नंबर होता है, लेकिन कौन यहाँ पे टाई ब्रेकर होता है? गली नंबर। इस गली नंबर में इस वाले हाउस नंबर पे जाना है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो आपको वहां पे क्या करेगा? चेंज करेगा। सेम उसी तरह से क्यों ऐसा, क्यों जरूरत है ऐसी? सो दैट कि राइट पार्टी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके तक पहुंचा जा सके। एग्री? सेम उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े इस वाले में, तो हमारे पास इंटरनेट पे जब हम जाते हैं, अगर एज अ यूजर मैं इंटरनेट पे हूं, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है इंटरनेट पे? मेरी IP एड्रेस। मैं IP एड्रेस से जाना जाता हूं इंटरनेट पे। सब लोग रिलेट कर पा रहे हो गाइस? तो IP क्या होती है जी? आपकी आइडेंटिटी होती है नेटवर्क में, इंटरनेट पे, जो भी बोलना चाहो आप ऐसा, है ना? और एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस।
मैक एड्रेस भी आपकी आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये आपके लोकल्स में, ये आपकी लोकल आइडेंटिटी है और ये आपकी ग्लोबल आइडेंटिटी है। अरे वैसे ही घर पे आपका निक नेम होता है अलग और ऑफिशियल अलग होता है, वो इस तरह से समझ लो। और ये दोनों की दोनों सेम एक ही डिवाइस होती हैं, वन डिवाइस टू एड्रेसेस। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके डिवाइसेज का ये। सब लोग रिलेट कर पा रहे हो गाइस? तो अगर आज के टाइम पे जो कि नेटवर्किंग हम देखते हैं आज के समय पे, उसको हम बोलते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं नेटवर्किंग में, दैट इज कॉल्ड ईथरनेट टेक्नोलॉजी। क्या है वो? हम बोलते हैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ईथरनेट टेक्नोलॉजी में हमें दो चीजों की जरूरत होगी किसी भी डिवाइस पे, एक आईपी एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस। सबको समझ में आ रहा है भाई? हेलो? जी सर। तो अगर इन दोनों चीजों की जरूरत होती है, अगर ये दो चीजों दोनों चीजें मेरे किसी भी डिवाइस पे है, मतलब मेरा काम डन है। तो इसमें से जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप कोई डिवाइस खरीदते हो उसके साथ में ही फ्री में आती है। मतलब दिस इज हार्ड कोडेड वंस यू परचेस योर डिवाइस। ओके? और ये वाला हार्ड कोडेड नहीं होता है। दिस नीड्स टू बी असाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेटर और सम सर्विसेज, जैसे डीएचसीपी सर्वर हो गया, सम सर्विसेज और प्रोटोकॉल यू कैन से, लाइक डीएचसीपी सर्वर। सब लोग समझ पा रहे होंगे आई होप। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ, देखो। जैसे मान लो एक पीसी है ये, ठीक है? सबको दिख रहा है? नया पीसी ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा एक ही मिक्स हो गया है। एक मैंने पीसी ले लिया दोस्त, ये देखो ले लिया। इस पीसी पे, अब इस पीसी पे ध्यान से देखो, राइट साइड में मैक एड्रेस दिख रहा है सबको? ये जो इमेज दिख रहा है इसमें देखो, राइट साइड में मैक एड्रेस का एक कॉलम है, उसके नीचे मैक एड्रेस लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है? हेलो? यस यस। है ना? लेकिन उसी वाले मैक एड्रेस को लेफ्ट साइड में आते जाओ, पोर्ट लिखा होगा एक जगह पे। सब लोग देखो, लिखा है पोर्ट? बोलो हाँ ना, जो भी दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो बोलो ना। चला गया, अब नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है पोर्ट? ये देखो, यस सर। पोर्ट के नीचे दो लिखा हो, एक पे लिखा है फास्ट ईथरनेट 0, एक पे लिखा है ब्लूटूथ। लिखा है ना? अब ये जो फास्ट ईथरनेट 0 है और ब्लूटूथ है, इसका मतलब है आपके इस पीसी में दो एनआईसी लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं दोस्त? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस। कार्ड। एग्री? तो जितने एनआईसी आपके डिवाइस में लगे होंगे जब आप उसको खरीद के लाओगे नया, उतने आपके पास क्या होंगे? पहले से कॉन्फ़िगर्ड मैक एड्रेस होंगे उनपे। सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे से? यानी जब कोई डिवाइस आप लेके आ रहे हो जिसमें जितने एनआईसी हैं उतने मैक एड्रेस होंगे। ठीक? गुड गाइस, समझ रहे हो बात को? अब जैसे अगर मैं अपने खुद के पीसी की ही बात करूं, अपने लैपटॉप की, तो मेरे पास कितने मैक एड्रेस होंगे बताइए? बोलो ना। वन सर। अगर आ रहा हूँ किसी को, जितने जितना नहीं होगा, रुको मैं दिखाता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। गेट मैक डालो विंडो पीसी पे, दिख रहा है कितने मैक एड्रेस है मेरे पास? जितने निक है। अब ध्यान से देखोगे, हो सकता है वर्चुअल एनआईसी भी हो आपके पास। जितने अडेप्टर, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो बड़ी सारी चीजें अलग अलग होंगी। एक तो ये मेथड है देखने का, या तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जाओ, ये कमांड बहुत सारे जनों को पता होगा, ncpa.cpl। सबको दिख रहा है ये चीज? तो कितने मेरे पास मैक एड्रेस होंगे गाइस?
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, जितने भी मेरे पास क्या होंगे, एनआईसी। चाहे वो वर्चुअल एनआईसी हो चाहे हो फिजिकल एनआईसी। वर्चुअल एनआईसी का मतलब जैसे वीएम वेयर का है, देखो लगा हुआ दो दो, ये तो वर्चुअल है ना, वीएम वेयर मेरे इस लैपटॉप पे इंस्टॉल होगा, इसका है वीएम वेयर वर्क स्टेशन का। एक है एनी कनेक्ट का, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक क्लाइंट है, वीपीएन क्लाइंट। वीपीएन का नाम सुना है ना, जो वीपीएन का एक एप्लीकेशन होता है, उस पर लॉग इन करते हो आप तो आपको आप दुनिया आपको ट्रैक नहीं कर पाती, वो वाली जो बात सुनी होगी। ठीक है। ये विंडोज का एडेप्टर है, ये इथरनेट टू नेटवर्क केबल, ये फिजिकल है, ये भी फिजिकल लगा हुआ है। ये ब्लूटूथ का है, ये ओपन वीपीएन का है। अगेन ये भी, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी वर्चुअल मेरे क्या है, ये एनआईसी है। तो जितना एनआईसी यानी जितना एडेप्टर उतना ज्यादा आपके पास मैक एड्रेस। बात समझ में आई सबको? यानी कि मेरे इस पीसी पे मैक एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन ये मेरा लोकली सिग्निफिकेंट होगा। मैक एड्रेस क्या होता है? ये मेरे खुद के लिए मतलब लोकली सिग्निफिकेंट है वो। ये इंटरनेट वगैरह पे नहीं जाता। इंटरनेट पे कौन जाता है? मतलब पूरे दुनिया में आपकी पीसी जो है जानी जाएगी किस चीज से? मैक एड्रेस से या आईपी एड्रेस से गाइस? आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस आपने अभी तक सेट नहीं किया, चलो सेट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ हो सब लोग, करें? ये हेलो, चलो करते हैं। देखो जिसको पहले से ये सारी चीजें पता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक दिन बियर कर लो, 2 दिन, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आने लग जाएगा, तब आपको भी मजा आने लगेगा। मतलब हो आप अपने पास है कई सारे जने इनको पता है ये सब बातें पहले से, और कुछ जने होंगे उनको नहीं भी पता है। तो चलो करते हैं इस पे हम कॉन्फ़िगर। कैसे करोगे कॉन्फ़िगर भाई? सिंपल स्टेप। तो सबसे पहले तो पैकेट ट्रेसर आप लोग इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप में। कैसे करोगे पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल? अगर नहीं है आपके पास तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। आप जाओ, एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं netakademy.com, netakad.com, और यहाँ पे आप लॉग इन करो। ठीक है, सब मेरा तो बना हुआ है तो मुझे लॉग इन करने की अलग से जरूरत नहीं है, मैं फटाफट ही ना आ जाऊंगा। आप अपना यूजर अकाउंट बना लेना वहाँ पे। बनाना कि अगर नहीं बनाते कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर भी आइडिया का आइडिया दे देता हूँ कैसे होगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और सर्च करूंगा पैकेट ट्रेसर। आ गया, पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा, और अंदर में जाके मैं क्या करूंगा, डाउनलोड लिंक निकाल रहा हूँ एक्चुअली मैं। फिर यहाँ पे मैं रिज्यूम कोर्स कर दूंगा। थोड़ी देर रुको, लोड हो जाने दो। डाउनलोड से इसको पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा कहीं मुझे। ले आया नई वेबसाइट पे, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको अपने किसके लिए डाउनलोड करना है, जो भी डिवाइस पे आप हो, तो मैं आपको ये कॉपी करके दे दे रहा हूँ। एक बार गाइस करके देख लेना आप लोग, मैं यहाँ चैट में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लेना सब लोग, क्योंकि आगे जाने पे ये वाली की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो वेबसाइट मैंने आपको अभी दी, एक बार मुझे ट्राई करने तो क्या डायरेक्ट खुल जाएगा ये? देखता हूँ। ये लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, मोस्ट प्रोबेबली मांगना चाहिए। तो ये मांग रहा है, आपको अपना यूजर अकाउंट बनाना है, header.login। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। नहीं मांग रहा है, करा है, लेकिन प्लीज लॉग इन टू डाउनलोड रिसोर्स, तो यानी कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो अगर आपका अकाउंट है इस वाले वेबसाइट नेट एकेडमी पे तो ओके, नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करना, और अपना अकाउंट फटाफट बना करके ईमेल आईडी वगैरह करके या गूगल से लॉगिन हो जाना। जैसे ही लॉगिन हो गए तो ये लिंक जो मैंने आपको दी है अभी अभी, इस लिंक को ओपन करना, आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लेना है। किसी के पास मैकबुक है, मैकबुक के लिए या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर।
आई होप सब लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ में। ठीक है, तो ये पैकेट ट्रेसर आप लोग कम से कम डाउनलोड करना, जब कल क्लास करेंगे हम उसमें पैकेट ट्रेसर पे ही चीजें देखने वाले हैं। सब चीजें अभी स्टार्टिंग हम पैकेट ट्रेसर पे देखेंगे, और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली अपग्रेड करते जाएंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर या डिवाइस पे। तो वहां पे आपको उसका एक्सेस आई होप मिलता जाएगा। आप बात कर लेना मैनेजमेंट से एक बार, काउंसलिंग टीम से या नेक्स्ट जेन की टीम से। ठीक है गाइज, तो पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लेना एक बार आप लोग, चलेगा? यस सर। ठीक है, ये मैंने लिंक दे दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो कहीं पे। ये नहीं तो आप कहीं गलत रिसोर्स से डाउनलोड कर लेते हो, सही जगह से डाउनलोड करना। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो हम इस पे आईपी देने वाले हैं। आईपी कैसे देंगे जी? आप अपने पीसी पे जाओ और सबसे पहले जाओ डेस्कटॉप पे, दिख रहा है ये ओपन करा, फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, और ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ, और यहाँ पे आप आईपी दे सकते हो। तो आईपी देने के कितने मेथड हैं आपके पास? एक तो स्टैटिक है, मतलब मैनुअल आईपी दे सकते हो स्टैटिक में। एक है डीएचसीपी। डीएचसीपी से आप आईपी तब दे सकते हो जब आपके पास कोई ऐसी डीएचसीपी सर्वर हो कहीं पे। तो आप जैसे इसको ऑन करोगे तो क्या करेगा आपका एपीसी डीएचसीपी सर्वर को, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मुझे आईपी दे दो। ये रिक्वेस्ट करेगा, डीएचसीपी सर्वर उसको सुनेगा, और अगर वो सुनेगा तो इसको आईपी भी देगा, जो कि हमारे पास नहीं है। क्लिक करो स्टैटिक पे, और यहाँ हम आईपी दे सकते हैं, क्या, IPv4 एड्रेस। मान लो मैंने दे दिया इसको 10.1.1.1। अब ये पूछेगा सबनेट मास्क दो, बाय डिफॉल्ट ले रहा है ये सबनेट मास्क। ये पूछ रहा है डिफॉल्ट गेटवे दो। याद है किसी को एग्जांपल वो वाला जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था? ये वाला, ये वाला एग्जांपल गाइस, सी, डिफॉल्ट गेटवे वाला। तो डिफॉल्ट गेटवे इस पीसी के लिए कौन होगा? ये जो राउटर है, ये वाला इंटरफेस राउटर का। समझ में आ रहा है सबको? हेलो गाइस। यस यस। तो डिफॉल्ट गेटवे का यहाँ पे, या गेटवे का मतलब क्या होता है? गेटवे का मतलब होता है आप किसी रूम के अंदर बैठे हो, तो रूम के अंदर से अगर बाहर जाओगे तो किस चीज का यूज करोगे? गेट का यूज करोगे ना। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको दिखाता हूँ फिर से। जैसे मान लो आप अपने कंपनी के अंदर में बैठे हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में और भी आपके बड़े सारे कोलीग हैं, सब एक कंपनी में काम करते हो, इतने सारे लोग हैं, कंपनी के अंदर में आप हो। तो कंपनी के अंदर में आपको कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्विच। तो उसके थ्रू आप सबके सब कनेक्टेड हो। और ये जो नेटवर्क है इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपकी कंपनी का लैन है। ठीक, ये आप कनेक्टेड। अब हुआ क्या कि आपके पास ऐसे ही ना और भी लैन है। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप यहाँ आऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है पैकेट ट्रेसर की। और ये पूरा का पूरा हिसाब किताब उठा तो सकता था, लेकिन ओए होए, एक लाइन वहां था, आपने एक लाइन और बना लिया। ये लाइन 2 बोल दो, इसको बोल दो लाइन 1। ठीक है गाइस, ये एक ही है, इसको भी कॉपी कर सकते हैं हम। ये चलो एक और बना लेते हैं यहीं से, कौन सा, तो घर का ही अपने हिसाब किताब। ये 2 लाइन अलग अलग है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बीच में एक अलग डिवाइस है जिसको हम राउटर बोलते हैं। ये राउटर क्या कर रहा है, दोनों लाइन को आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है। मतलब अगर किसी को बात करनी है दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क लैन 1 का कोई यूजर अगर लैन 2 के किसी यूजर से बात करना चाहता है, तो कौन इसमें हेल्प करेगा इस बताओ?
जाहिर सी बात है, इस नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट कहाँ से है, गेट कहाँ है इस नेटवर्क में, देख के बताओ इमेज में। इस नेटवर्क से ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट ये नेटवर्क ये वैसा ऐसा करके है। इस पीसी को इधर लाने तो थोड़ा सा ज्यादा सेंस करे की बात। जी गाइस, ये पूरा पूरा आपका नेटवर्क है। बताओ, अगर इस नेटवर्क से बाहर आपको जाना है तो कहां से आपका एग्जिट पॉइंट है, ये गेट है आपको, ये राउटर 5 के थ्रू आप जाओगे। बात समझ में आई? तो ये राउटर 5 के ये वाला जो भी इंटरफेस होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा। ऑप्शंस के अंदर है, फाइल्स के अंदर प्रेफरेंसेस, इसमें कहाँ आता है, यहाँ आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। शो पोर्ट लेवल्स, आई थिंक शुड बी शोइंग नाउ। अच्छा, ये कह रहा है जब उस पर जाओगे तो मैं दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन मेरे को ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स करना है। देखो, अब ये राउटर का काम क्या होता है, अगर दो लैन है उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, यानी दो दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। तो जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी के अंदर एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा है, लैन 2 है। ठीक है। ओके गाइस, तो अब पॉइंट क्या है, मान लो अगर ये PC10 इस वाले PC10 से बात करना चाहता है जो कि दूसरे नेटवर्क में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने इस लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो ये जा पाएगा लाइन 2 तक। नहीं, सब लोग मेरे साथ हो इस बात के लिए कि नहीं, ऐसे इन जनरल बात सही बोल रहा हूं? अगर ये वाले लाइन 1 का एक PC10 यूजर लाइन 2 के PC10 यूजर से बात करना चाहता है, तो क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन में है, यानी डिफरेंट नेटवर्क में है, तो इस नेटवर्क से पहले इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो इसको पास जा पाएगा। नहीं, और जाएगा, और कौन लेके जाएगा दोनों को, ध्यान से देखो, इस वाले लाइन को और इस लाइन को कनेक्ट कौन कर रहा है, राउटर। तो यानी कि तुम्हें भेजना कहाँ पड़ेगा अपने ट्रैफिक को, इस राउटर के पास। और ये राउटर का ये जो वाला जो इंटरफेस है, इसी को बोलते हैं गेटवे। क्या बोलते हैं? गेटवे। तो जब कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो आईपी वगैरह का, तो वहां पे आप एक चीज देते हो, पहली तो आप आईपी दे दोगे। ठीक है, एक मिनट कहीं और यूज हो रहा है, अच्छा चलो इसे दे दो। और फिर आप बोलोगे भी डिफॉल्ट गेटवे कौन है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया राउटर है, ये जो राउटर है मेरा, इसकी आईपी 10.1.1.10 है। दैट्स गुड। और ये डीएनएस सर्वर की आईपी मांग रहा है, कि मतलब जब कभी भी आप मान लो google.com वगैरह को पिंग करो, तो आपके google.com की जगह पे, जाहिर सी बात है, ये जो google.com, HCL.com या नेक्स्ट जेन IT कोर्सेज.com, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, ये एक्चुअल में वेबसाइट तो हम यूजर के लिए नाम दिया गया है, इनको डोमेन दिया गया है, लेकिन एट द एंड पीछे के पीछे ये क्या यूज कर रही हैं, पीछे में आईपी यूज कर रही हैं। बात समझ में आई? तो ये जो डीएनएस सर्वर होता है, ये इसका काम होता है कि अगर कोई नाम है उसको आईपी में कन्वर्ट करना और आईपी को नाम में कन्वर्ट करना। तो ये चीजें समझ में सबको आ गई यहां तक गाइस? टेल मी। ये आईपी वाले सेक्शन में ये चारों चीजों का क्या कॉन्सेप्ट है, वाई दे आर देयर? किसी कोई प्रश्न है तो पूछो, क्योंकि बाकी का जो कॉन्सेप्ट है जो कि CCNA वगैरह में है, वो आगे हम देखेंगे, कल कल देखेंगे आगे। अब कोई प्रश्न है किसी का? अब्दुल, अरुण, अविनाश, दिनेश, सैयद, सर ये गाइस क्लास एनीवन है? क्लास कब तक चलेगी? आज मतलब
आज से मतलब मंथली, मतलब 1.5 महीना, मंथ 1 मंथ। हाँ, मैं आपको अगर बोलूं तो ये कम से कम जाएगी आपकी 1.5 से 2 महीना सैयद। ड्यूरेशन जो सीसीएनए का रहता है नॉर्मली यही रहता है वीकडेज में ना। हम्म। ठीक ही यस। इज राइट, करेक्ट। ठीक है। ठीक है सैयद, ओके। जी जी किसी और सर, का जी जी सर। किसी और का प्रश्न है तो पूछो। बाकी काउंसलिंग टीम आपको बता देंगी पूरा, अगर आपका जो भी डाउट होगा कि लाइक कितने दिन तक क्लास चलेगा, लैब का एक्सेस मिलेगा क्या, और बहुत सारी चीजें लाइक टाइमिंग क्या होगी क्लास की, ये सारी चीजें। सर 40 कैसे पढ़ाओगे? जैसे कि अभी सीसीएनए चल रहा है तो कैसे बैक टू बैक पढ़ाओगे या फिर एक टॉपिक इसका लेके दूसरा टॉपिक उसका? नहीं, पहले हम सीसीएनए पढ़ेंगे पूरा, फिर हम फोर्टीनेट पढ़ेंगे सर। ओके ओके सर। तो एक ऑप्शन और भी है गाइस हमारे पास, जिसको थोड़ी बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज है, वो वीकडेज में सीसीएनए कवर अप कर सकता है और वीकेंड पे फोर्टिनेट कर सकता है। सर ही पढ़ा रहे हैं सेम। वो सैटरडे संडे सुबह मॉर्निंग 9 AM है। अगर कोई पैरेलल करना चाहता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, टाइम अवेलेबिलिटी है, तो वो पैरेलल भी कर सकता है। अगर कोई 1 by 1 करना चाहता है, दैट इज अप टू हिम। हाँ यार, ओके इस बहुत बहुत सही बोला आपने ये मेरे मन में नहीं आया। करेक्ट है, और क्या, बिल्कुल। और आप आओगे उधर, अगर आना चाहते हो आप उधर आओ 14, क्योंकि आपने अगर कॉम्बो लिया है तो जाहिर सी बात है पढ़ना तो आपको दोनों है। अगर किसी सीसीएनए के देखो, 14 पढ़ने के लिए आपका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर रहेगा, क्योंकि वो फायर वॉल है, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करेंगे आपके बेसिक्स से, लेकिन बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आपको आसान हो जाएगा वो समझना। जैसे आईपी एड्रेस सबनेटिंग आती हो आपको, राइट, नॉर्मल एसीएल वगैरह आता हो आपको, बस इतना ठीक है। और क्या चाहिए उसके लिए, आई थिंक दैट्स इनफ। राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हो, डन है फिर, है ना। उसके बाद आप अगर फायरवॉल पढ़ोगे तो दैट इज ओके, क्योंकि वो फिर डोमेन ही डिफरेंट हो गया ना टोटल, एक नेटवर्किंग एक सिक्योरिटी तो उस हिसाब से। यस। ओके सर, लेट्स connect by tomorrow same 9 p.m. Okay, same time. ठीक है, ओके सर, चलेगा। Okay guys, thank you for the time. Good night everyone. Thank you sir. थैंक थैंक यू, यू, गुड थैंक यू। नाइट। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।